پیسہ جو آج تک کسی کا وفادار نہیں رہا، لیکن بھکاری سے لے کر ارب پتی تک ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، زندگی میں پیسہ کتنا ضروری ہے یہ شاید مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک نشہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسوں سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، انہیں جیف بیزوس، ایلون مسک، بل گیٹس اور مکیش امبانی کو دیکھنے کے بعد سڑک پر زندگی گزارنے والے لوگوں پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ یقیناً آپ پیسے کی اہمیت سمجھ جائیں گے۔ آج کے اس زمانے میں بنا پیسوں کے زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے۔ پیسہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہوا، پانی اور کھانا۔ پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو ان اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن پیسے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اسے کس نے بنایا؟ کب؟ کیوں؟ اور پیسہ آخر ہے کیا؟ What is money؟ پیسہ بظاہر تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی خود میں کوئی قیمت نہیں، بس یہ صرف ہمیں دوسری چیزوں کی قیمت بتاتا ہے۔ ہم اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اس وقت کتنا پیسہ ہے؟ جو نظر آتا ہے وہ ہے 40 خرب ڈالر، اور جو نظر نہیں آتا وہ ہے 1300 خرب ڈالر، یعنی کہ 1.3 کوڈیلین۔ آخر اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اسے کس نے بنایا؟ پتھروں اور سونا چاندی کے سکوں سے لے کے ایسے پیسے تک جو نظر ہی نہیں آتا۔ آخر کیسے یہ ایک ایسی زبان بن گیا جسے دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے؟ آخر کیسے اس بے جان سی چیز نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا آج سے 17,000 سال پہلے، یعنی 15,000 BC میں۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں پیسے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہا کرتے تھے، اور ان سب کا صرف ایک ہی مقصد تھا، شکار کرنا اور کسی بھی طرح زندہ رہنا۔ لیکن شکار ایک ایسی چیز ہے جو ہر روز نہیں ملتا، لیکن بھوک تو ہر روز لگتی ہے۔ یہ بھوک ہی تھی جس نے ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے سے کوئی چیز لینے اور دینے پر مجبور کر دیا۔ یہ اپنے ہتھیاروں کے بدلے تازہ گوشت لیتے تھے، کیونکہ اگر آپ ایک چیز زبردستی لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بار تو مل جائے گی، لیکن دوسری بار کبھی نہیں۔ اور اس طرح وجود میں آیا بارٹرنگ سسٹم، یعنی ایک سامان کے بدلے دوسرے سامان کو دینا۔ ریسرچرز کے مطابق بارٹرنگ سسٹم کی شروعات کہیں نہ کہیں میسوپوٹیمین ٹرائبس نے کی تھی۔ میسوپوٹیمیا ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں آج عراق ہے۔ یہیں میسوپوٹیمین ٹرائبس رہا کرتے تھے۔ بارٹرنگ سسٹم نے مانو ہمیں بدل کے رکھ دیا، جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا ٹریڈ۔ لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے لگے تھے، جو کل تک اپنے پیٹ کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وقت گزرتا گیا اور ہزاروں سال بعد جب لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی اور وہ شکار کے علاوہ کھیتی باڑی بھی کرنے لگے، تو بارٹرنگ سسٹم کی کئی خامیاں نظر آنے لگی۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ یاد رکھنے میں مشکل پیش آنے لگی کہ کس انسان کو کیا چیز دینی تھی اور کس سے کیا چیز لینی تھی۔ یہ یاد رکھنے کے لیے انسانوں نے مٹی کے ٹکڑوں پر لکھنا شروع کر دیا، جس سے شروعات ہوئی اکاؤنٹنگ کی۔ ہم نے چیزوں کا حساب کتاب رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن بارٹرنگ سسٹم میں ابھی بھی بہت سی خامیاں تھیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹریڈ کرنے کے لیے دونوں انسانوں کا رضامند ہونا لازمی تھا، کیونکہ کئی بار ٹریڈ کرتے وقت ایک انسان کو اس کی ضرورت کا سامان مل جاتا تھا، لیکن اگلے انسان کو وہ چیز نہیں چاہیے ہوتی تھی جو سامنے والا اسے دے رہا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ایک وقت کے بعد اس طرح سے ٹریڈ کرنا کافی مشکل ہو گیا، اور انسانوں کو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس کی ضرورت ہر ایک انسان کو ہو، اور اس طرح شروعات ہوئی پیسے کی۔ یہ وہ پیسہ نہیں جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تھا کموڈٹی منی، یعنی کہ اس ٹائم کے انسانوں نے ہر اس چیز کو پیسہ بنا لیا جو نایاب تھی، جو ہر کسی کے استعمال میں آ سکتی تھی، اور ہر کوئی اس کے ذریعے ٹریڈ کرنے کے لیے راضی تھا۔ جیسے پالتو جانور، جس میں گائیں، بھینس، بکری، گدھا شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہتھیار جیسے چاقو، کلہاڑی، تیر، تلوار، جانوروں کی کھال، نمک، مور کے پنکھ، ہاتھی کے دانت، شراب، اور یہاں تک کہ انسانوں کو بھی پیسے کے طور پر استعمال کرنا عام بات تھی۔ کموڈٹی منی نے ٹریڈ کو آسان تو کر دیا، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی خامی تھی کہ ہر انسان اپنی چیز کو سامنے والی چیز سے زیادہ قیمتی بتانے لگا، جس سے ایک بار پھر ٹریڈ کرنا مشکل ہو گیا، اور اب انسانوں کو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس کی ایک خاص قیمت ہو اور وہ زیادہ دیر تک رہ سکے، کیونکہ جانور اور شراب جیسی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کی اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آج سے 2600 سال پہلے، یعنی کہ 600 BC میں اینشنٹ گریس میں شروعات ہوئی میٹیلک منی کی۔
सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। गौर से देखिए इस सिक्के को, यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टार्टर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले 1000 BC में चाइनीज ने की थी, जो पित्तल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, पर लाइडियन स्टार्टर की तरह इनको इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाइडियन स्टार्टर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके जरिए ट्रेड करना बहुत ही आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी कमोडिटी मनी की तरह ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, पर अगर ज्यादा हो तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगी। फिर वक्त आया 500 BC का, जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों शोर से चल रही थी और ये सारी ट्रेड होती थी सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज्यादा होते थे उतना ही ज्यादा उनका वजन होता था, और वजन ज्यादा होने की वजह से समुद्री जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों के चोरी होने का भी खतरा बढ़ जाता था और इन्हें गिनने में भी काफी वक्त लगता था। इसलिए अब सिक्कों की जगह कोई ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो वजन में हल्की हो और आसानी से स्टोर और काउंट किया जा सके। वैसे ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जरूरत ही इजाद की माँ है। और यही हुआ पेपर मनी के साथ। लोगों की जरूरतों ने पेपर मनी को वजूद में लाया। साल 1279 में मंगोलियन चाइना के शहंशाह और चंगेज खान के पोते कोबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। इस पेपर मनी को IOU यानी IOU कहा गया, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो इसे वापस करके अपने सोने और चांदी के सिक्के ले जाना। लेकिन लोगों ने सोचा इस कागज को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसी से ट्रेड करते हैं। और वक्त के साथ साथ ये पेपर मनी चाइना के बाहर तक फैलने लगी। लेकिन जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत ही बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा पर पहुंच गई कि IOUs यानी उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। इस चीज का फायदा उठाते हुए बैंक्स लोगों से सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। और IOU एक ऐसी चीज थी जो बैंक्स जितना मर्जी चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो जानते हैं कि बैंक्स लोगों को लोन देकर पैसे कमाते हैं। कुछ टाइम बाद ये मिनी बैंक्स लोगों को उधार IOUs देने लगे, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। बैंकों में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थे। जब लोगों को इस बात का पता चला कि उनके IOUs की कीमत कम हो रही है, तो लोग अपने सोने के सिक्के लेने के लिए बैंकों की तरफ भागे। लेकिन बैंक्स के पास उन सब को देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और लोग अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिसकी वजह से पैसों की सर्कुलेशन काफी कम हो गई और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। फिर वक्त आया 1816 का, और ब्रिटेन एक नया कानून सामने लेकर आया कि जितना सोना हमारे पास होगा हम उतने ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी कम होगी और कर्ज भी एक महदूद रकम तक ही दिया जाएगा। इस तरह से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया, और देखते ही देखते सारे कंट्रीज अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगे। और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स को अपना लिया। लेकिन इसी के साथ पेपर मनी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, जो खतरनाक है, पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर साल आया 1930 का, जिसमें यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया।
बस जो भी थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक्स के पास ताकत वापस आ गई थी, जिसका फायदा उठाना बैंक्स को अच्छी तरह से आता था, और वो ताकत ही नोट छापना। और ज्यादा पैसा होने से इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो जाती है, और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED की बुनियाद रखी, जिसका काम ये रेगुलेट करना था कि मुल्क में ना तो पैसा ज्यादा हो और ना ही कम हो। लेकिन वो पैसा जिसे लोग IOU में कन्वर्ट कर सकते थे, अब वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया था, जिसे फिएट मनी कहा गया। दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं वो सब की सब फिएट मनी हैं। अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं, क्योंकि हमें बस यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट्स, लॉकर्स में जो भी पड़ा है वो भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी लेके जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज जिसकी इस तेजी से बदलती हुई दुनिया को बहुत जरूरत थी, और वो थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी तो वक्त लगता है। और अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड के अंदर दूसरों को ट्रांसफर कर सकें। और 1980 में लॉन्च हुई ई-मनी यानी डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, ना ही चोरी होने का डर और ना ही गिनने की जरूरत। और तो और अब बैंक्स को कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पे कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। और सच तो ये है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी खामी है, और वो है हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसी चीज को देखते हुए 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, यानी बिटकॉइन। नाम तो सुना ही होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये किसी फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा हुआ है। हम तो सिर्फ इसे बनाने वाले का नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस बिटकॉइन पर गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज किया जा सकता है। लेकिन इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। जानते हैं जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत सिर्फ $1 थी। और आज 2024 में ये बिटकॉइन $64,000 का है, यानी पाकिस्तानी 1,90,00,000 रुपए, और इंडियन रुपीज में ये बिटकॉइन 54 लाख रुपए का है। अब ये एक स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन एक बार पीछे मुड़ के देखिए इस दुनिया ने थोड़े ही वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए हैं जो नजर ही नहीं आता। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।